बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अला नूर वजीर कतुन को जप F9 पार्क इस्लामाबाद के मौजूद यम दलता द कमी जैतून द गाले इनेकाद शवे दे चुकुम दगा गालाता दलता रगली खलक ती चुकुम स्टालून लगवली दी और चुकुम आम वलस्ते द अगुई सरा खबर का च दुई दे कमी जैतून द गाले पे इनेकाद बंदे सा नजर लरी और दिन अलावा द जैतून फवाइद सदी और दे सरा सरा द जैतून द काश्त पे हवाला सरा द दुई जमींदारान ता पैगाम सदे په دې مختلفو سیزونو به چې کوم دلته راغلي سټالونو والدي او ورسره چې کوم عام ولس دی د هغوی سره به خبرې کوو راځئ د موږ سره اوسئ. تاسو نام؟ د ما نوم محمد امان دی، شیخ الاسلامي تخلص کوم. امان چې کوم کامي زیتون ګاله ده په دې انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ د مونږ خو د افغانستان یو دلته راغلی یو نن دغه نمایشګاه ته راغلی یو دا ډېر ښه نمایشګاه او زیتون یې هم ډېر ښه و. مونږ ټسټ هم وکړل، ځان ته هم واخیسته او د دې زیتون نه استفاده کوو. د زیتون فواید څه دي د صحت لپاره؟ زیتون ډېر فواید لري. زیتون فواید د پوست نه نیولې تر هډوکي پورې تر د بدن مقاومت وړتیا پورې هغوی ته ډېره ګټه کوي. زیتون د زیتون آیل هم پوست ته او ټول بدن ته ګټه لري، ډېر ښه ګټه لري. زیتون ډېر زیات فایدهمند ګڼي خلک. نو د زیتون د کاشت په حواله سره د کاشتکارانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ مونږ د کشتګرانو ته دا پیغام لرو چې دغه وده ورکړي، ډېر کړي د زیتون کښت په ټول پاکستان کې د زیات کړي او خلکو ته ډېر ورسیږي. کوم د کامي زیتون ګاله دلته انعقاد شوی دی په F9 پارک کې، ستاسو نظر څه دی؟ ډیر زبردست ماشاءالله. دلته لکه موږ د نیشنل او انټرنیشنل چې کوم انویسټران دي او مارکیټ د هغې سره زموږ رابطه وشوی او د کانټیکټ نمبر هم یو بل ته ورکو او ماشاءالله ډیر زبردست سیل هم وشو، ډیره زیاته پوهه هم راته پکې میلاو شوله. ستاسو خپل هم سټال دی او کوم کوم آیټم دي در سره؟ جی بالکل زموږ خپل سټال دی او زموږ سره زیتون تیل دی، د زیتونو اچار دی او د زیتونو مسواک چې کوم دی هغه مو راوړي دي، چې مو راوړي دي د زیتونو والا ورسره. د خلکو د ستاسو مطلب چې کوم دغه آیټمز دي د ریاکشن یې څه دی؟ ماشاءالله ډیر زبردست، ډیر ښه دی. یو خو د صحت په لحاظ باندې هغه هم لکه ډیر ښه دي، بلډ پریشر، یوریک ایسډ او د زړه د دورې دپاره هم ډیر ښه دي. د زیتون فواید زیات دي؟ ډیر زیات دي بالکل. لکه 7 ځله یې د هغې په قرآن کې هم ذکر راغلی دی او بلډ پریشر، یوریک ایسډ کې لکه ډیر کار کوي او د ډیرې بیمارۍ نه سړی ساتي. د زیتون د کاشت په حواله سره زمیندارانو ته ستاسو پیغام څه دی؟ دا خو لکه ټوله فایده ده. اوس 4000 روپۍ باندې مونږ دلته لیټر ورکوو او 500 روپۍ باندې یو چټاک پته یې د هغې مونږ ورکوو. نو زه وایم چې هر څوک په دې باندې محنت وکړي، کار وکړي، نو دا فایده ده. ستاسو نام؟ ما نوم سید وزیر دی. وزیر صاحب چې کوم کامي زیتون میله ده د دې چې کوم انعقاد شوی دی په دې انعقاد باندې ستاسو نظر څه دی؟ نن چې کوم په اسلام آباد کې د زیتون چې کوم میلې انعقاد شوی دی، یار دا ته زه ګوره چې دا یو اهم اقدام دی. موږ که وګورو قبایلي اضلاع ورسره بلوچستان چې کوم وطن دی دا د وسایلو نه ډک دی. مونږ ته هیڅ معلومات نو دلته چې مونږ رالو هغه که د پنجاب دي، که هغه د بلوچستان دي، که د قبایلي اضلاع دي، یعنی مختلف قسم دلته مونږ زیتون ولیدل، هغه د زیتون پراډکټس مو ولیدل او مونږ هم د غوښتنې کوي د حکومت نه چې آینده مطلب هر 3 مهینې نه بعد داسې ایکسپو انعقاد وشي چې د خلکو ته رسایي وشي او مونږ ته د هر څه د دې متعلق یعنی معلومات وشي. دلته مونږ وینو چې مختلف سټالونه دي، ټول ملک نه خلک راغلي دي د زیتون او چې کوم نور د دوی پراډکټس دي د هغې سټالونه دوی لګول دي. نو د زیتون په فواید باندې ستاسو نظر څه دی؟ لکه دلته ما چې کوم سټال ویزټ وکړو خاص کر د وزیرستان مال هغه د زیتون آیل دی. زیتون آیل یو لیټر نن سبا په 4000 میلاویږي او ورسره د دې نه ګوړ شو، ګرین ټي شو، مسواک شو، امسې شوې، یعنې نور داسې شیان دي. هغه که مونږ په دې کار باندې یعنې فوکس وکړو او زه د وایي چې د نوجوان نسل لپاره هسې هم مونږ ملک چې کوم دی دا زراعت دی او غرونه هم ډېر دي، ډېر سوا دي. که مونږ په دې باندې محنت وکړو انشاءالله مونږ چې کوم ینګ نسل دی، روان نسل دی، دغه دپاره به یو ښه اقدام وي، یعنې خلکو دپاره د روزګار موقعې به ډېرې زیاتې وي. بالکل د روزګار مواقع مې هم ملاویږي او د زیتون د کاشت په حواله سره زمیندارانو ته پیغام څه لرئ؟ لکه زه خپل د کلي مثال درکړم چې وزیرستان چې کوم دی دغه یو ګرین وطن دی
خو نن سبا بدقسمتۍ چې کوم سیلاب دی کلایمیټ چینج راغی هغه هم ډېر زیات متاثر کړی دی او ما هم مخکې یو ریپورټ کتو چې زیتون واحد داسې بوټی دی مطلب چې هغه واټر ټیبل کوم دی هغه برقرارولو سټیبل کولو کې هم رول پلی کوي او ورسره قدرتي هم ډېر زیات دی مونږ هم دا غوښتنه کوي لکه دا واوا چې کوم ټیم دی هغه ممبران دي دې کال د 35,000 نه سوه زیتون چې کوم د هغې پیوندکاري وکړله مونږ او تاسو که ټول په شریکه باندې په دې شي باندې فوکس وکړي انشاءالله د وزیرستان چې کومه خوبصورتي ده بلکې د ټول ملک چې کومه خوبصورتي ده هغه به دوچند شي واټر ټیبل شو دغسې سیلاب چې کوم شو هغې روکتام به هم وشي د کمی زیتون چې کوم د ګالې انعکاس شوی دی په دې باندې ستاسو نظر څه دی جی دا خو یو ډېر بهترین اقدام دی د ګورنمنټ د طرف نه خاص کر ان آر سی چې کوم دی ځکه چې دلته کې چې دی نو دغه چې دی نیشنل دا ګاله چې کوم ده نو د زیتون چې کوم بوټی دی د دې دغه شو ایډورټایزمنټ شو مطلب مختلف قسمه خلک دلته راغله او دی ولیدل چې زیتون څومره اهمیت لري د زیتون چې کوم مختلف چې کوم پروډکټس دي هغه دلته کې ولیدل او موږ دلته کې چې کوم سټال لګولې دي چې زموږ دا سټال چې کوم دی د ډریپ اریګیشن دی نو موږ چې دی پی ای آر سی سره چې دی نه کار کړی دی په زیتون په باغونه چې کوم دي په دې باندې موږ ډریپ اریګیشن لګو او باقي د دې نه علاوه موږ پرایویټ کاروم وکړو او په خیبر پښتونخوا کې موږ آن فارم واټر مینجمنټ چې دی په هغې سره مو چې دی نه زموږ رجسټرډ یو او موږ په هغې کې مو چې دی نه کار کوو نو که څوک په خپل باغ باندې یا په پټو کې چې دی نه سپرینکلر یا ډریپ اریګیشن لګول غواړي نو موږ سره کانټیکټ کولی شي موږ چې دی نه په 60-40 باندې دغه کوو 60% چې دی نه ګورنمنټ سبسیډایز دا کوي او 40% چې دی نه فارمر باندې راځي زیتون فواید څه دي زیتون خو جی مختلف فواید دي څنګه تاسو که دغه کې به تاسو ګرځېدلي ګاله کې مختلف سامان چې دی نه دی کې ملاویږي د دې نه چې دی نه موږ آیل ایکسټریکټ کولی شو دی نه موږ چې دی اچار جوړولی شو دی نه چې دی نه ویکس جوړیږي د دې نه صابون جوړولی شو موږ مختلف قسمه دا کې باقي د زیتون چې کوم تیل دی نه دا بهترین چې کوم دغه دی د زړه د دغه دپاره چې دی نه دا ښه دي نو ډېر بهترین چې سیز د زیتون جي مختلف قسمه بیماریانو چې کومه شفا د هغه هم په زیتون کې شته جی بالکل چې دی نو او زیتون چې دی نو مختلف بیماریانو شفا مو چې دی نو په زیتون کې شته او دغه د بهترین دغه دی جی د زیتون د کاشت په حواله سره تاسو کاشتکارانو ته زمیندارانو ته پیغام څه دی جی د زیتون چې کوم دغه دی زمونږ خو بیسیکلی کار چې کوم دی اریګیشن هغې ته دغه کوو نو چې کوم ځای کې چې دی اوبو داسې قلت وي یا دغه کول غواړي نو موږ چې دی نه دلته کې د هلته څوک وایي چې یاره موږ سره اوبه کمې دي او موږ زیتون نشو دا کولی نو دا ډریپ سیسټم چې موږ انسټالوو چې هم د هغه ځایونو دپاره خاص کر دی کې د هغې چې کوم پروډکټیویټي دا به مو بهترین وي او هغې دغه به مو کوالټي به مو چې دی نه دغه به ښه کوالټي دغه به وي کاشت یې په کار هم دی 1 لیټر یې په 4,000 روپۍ دی نو په کار ده چې خلک مطلب د دې کاشت وکړي او دې نه مطلب چې کوم یو انکم فایده ده او بیا هم چې کوم د صحت په حواله سره صحت ته څومره ضروري دي د زیتون تیل نو په کار ده چې خلک د دې زیات کاشت وکړي همدغه خبره ده چې دلته کې دا ګاله چې کوم لګېدلې ده همدغه مختلف فارمرز راغلي دي چې هغوی دا بوټي کرلي دي او دلته کې چې دی نه خپل بیا دغه لګولي پلانټس لګولي دغه لګولي دي او آیل ایکسټریکټ کوي همدغه دغه خرڅوي نو تقریبا تاسو به اوس دلته کې فارمرز نو مې انټرویو اخیستي چې دی هغوی ته د یو بوټي نه څومره منافع کېږي د سالانه نو یقینا چې دی نه دا ډېر بهترین دغه ده او زما خو چې دی نه ټول خلکو ته دا دغه دی چې تاسو په خپل دغه کې چې دی زیتونو دغه ولګوئ او ډېر منافع بخش پوي ستاسو لپاره قومی زیتون गाले के इनेकात के हवाले से क्या कहेंगे देखिए ऐसी एक्टिविटीज़ जो है हमेशा किसी भी फसल को प्रमोट करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि एक तो हर तरह के स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से इंटरेक्ट कर सकते हैं कुछ बिज़नेस के हवाले से जो है आइडियाज़ मिल सकते हैं उनको प्रमोशन के हवाले से उनको इसमें हेल्प मिलती है नॉलेज एक्सचेंज होता है और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आइडियाज़ जो इंडिविजुअली शेयर नहीं किए जा सकते हैं यहाँ गाला में जो है उनको ये देखने के लिए मिलते हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे जो इवेंट्स हैं वो किसी भी क्रॉप के लिए बहुत बेनिफिशियल है जैतून के फ़वाइद क्या है और इसके फ़वाइद के हवाले से क्या कहेंगे देखिए जैतून जो है वो सबसे बड़ी उसका फ़ायदा तो ये है कि इसकी कसम अल्लाह पाक ने खाई है तो और दूसरी बात ये बताई जाती है कि 70 बीमारियों से शफा है इसमें लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई 70
तो इंसानों के जो है वो मुतय्यन करदा फिगर है, शायद नहीं, यकीनन इसमें कहीं ज़्यादा जो है इसमें बेनिफिट्स हैं। और इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें शुगर में जो है कंट्रोल करने में मदद मिलती है, ब्लड प्रेशर करने में, हार्ट के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो इस तरह के बेशुमार ऐसे फ़ायदे हैं जो जैतून के किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके लोग हासिल कर सकते हैं। जैतून के इनकम के हवाले से भी काफ़ी मतलब इनकम भी आती है। 4,000 रुपये इधर मार्केट मतलब इस गाले में लीटर है जैतून तेल का। इसके अलावा और भी इसकी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉलों में लगाए हैं, तो इनकम का भी इसका मतलब अच्छा फ़ायदा है। जी देखें जी, इनकम आमतौर पे जो रिकमेंडेड फासला है वो 18 फीट बाई 18 फीट है। उससे 134 पौधे फ़ी एकड़ आते हैं, और अगर हम उसको 15 केजी फ़ी पौधे के हिसाब से अगर उसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन जो है 2.25 लाख जो है इनकम जो है फ़ी एकड़ हासिल की जा सकती है, जो किसी भी जो है फसल के साथ कंपेरेबल है। दूसरा, ये सदियों का पौधा है, इसमें आप 500 साल तक तो बड़ी आसानी से अच्छा फल हासिल कर सकते हैं। और फिर कुदरत ने इसमें इतनी ताकत रखी है कि ये पौधा अगर किसी स्टेज पे इसमें पैदावार कम हो जाए या इसमें पैदावार ख़त्म हो जाए तो इसको ऐसे तरीके से काटा जा सकता है कि ये नए सिरे से जवान हो जाता है। कुदरत ने इसमें इतनी तवानाई, इतनी ताकत रखी है। तो अगर ये तो मैं बात कर रहा हूँ ऑलिव ऑयल के हवाले से, अगर ऑलिव वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के हवाले से बात की जाए, जिसमें अचार है, मुरब्बा है, स्क्वैशेस हैं और बहुत सारी चीज़ें इससे बन सकती हैं, तो ये मुनाफा इसका कई गुना ज़्यादा हो सकता है। यानी हम ये आसानी से कह सकते हैं कि हम 10 लाख फ़ी एकड़ तक इससे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जैतून के काश्त के हवाले से ज़मींदारों के लिए आपका पैगाम क्या है? जी, इसमें बड़ा सादा सा पैगाम है जी, सिर्फ 2 जगहों को ज़रा एहतियात करें। एक जिसमें नमकियात ज़्यादा हों, या ऐसी जगह जहाँ पे जो वाटर टेबल है वो बहुत करीब हो ज़मीन में, यानी 20 फुट से कम हो, तो वहाँ पे इसकी काश्त करनी मुनासिब नहीं है। वरना ये हर तरह की पथरीली, रेतली, पहाड़ी, हर तरह की ज़मीन पे इसको काश्त किया जा सकता है, और बड़े ही अच्छे तरीके से इससे जो है आप पैदावार भी हासिल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे भी उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये जैतून की सुस्ती को भी बर्दाश्त कर लेता है। आम फसलों की तरह इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती कि आप इसकी जो है बहुत रेगुलर केयर करें, ये थोड़ी तवज्जो से भी आप इससे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। मैं खेती टेक्नोलॉजी से हूँ और आज हमने यहाँ पे नेशनल ऑलिव गाला में हमने एग्जीबिशन लगाया हुआ है। आई थिंक इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव फॉर ऑलिव फार्मर्स एंड दिस ऑलिव इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, बिकॉज दिस पोटेंशियल इटसेल्फ इज़ बिग इन पाकिस्तान। और उसके अलावा आई थिंक यहाँ पे जो एग्जिबिटर्स हैं, मैंने खुद विज़िट किया और काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की हुई, नॉट जस्ट ऑलिव्स बट उन्होंने उसको फिर एक प्रोडक्ट जो है मार्केट में शेल्फ पे रखा जा सके वो उन्होंने यहाँ पे बनाए हुए। ऑयल है, दे हैव पिकल्स, दे हैव ऑलिव लीफ टी विच इज़ अ न्यू प्रोडक्ट दैट आई डिस्कवर्ड एंड इट्स रियली गुड बेनिफिट वाइज, क्योंकि ऑलिव के बहुत फ़ायदे हैं जो आई थिंक पाकिस्तान में लोगों को इतने पता है। जैतून गाले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगी? यहाँ पे आकर आप लोगों का भी स्टॉल है, बाकी भी मुख्तलिफ स्टॉल है, तो जैतून का जो 1 लीटर है वो 4,000 तक लोग मतलब बेच रहे हैं, क्या कहेंगी? आई थिंक क्योंकि इतना प्योर फॉर्म का आप मार्केट में जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक यहाँ पे फार्मर इट्स खुद बना, एक तो फ्रूट निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और फिर वो उसी को ऑयल में निकाल के उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं। तो इट इज़ अ गुड इनिशिएटिव फॉर देम टू अर्न प्रॉफिट नॉट जस्ट टू देयर फ्रूट बट ऑल्सो विद द प्रोडक्ट दे आर मेकिंग इट, द ऑयल इट्सेल्फ। और इसके कितने फ़वाइद हैं अगर हम इसको प्योर ऑलिव जो कंज्यूम करें तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स फाइंड होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छे होते हैं, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। एंड ऑलिव इज़ नोन टू हैव नॉन कैंसरस, इट प्रिवेंट्स कैंसर इन जनरल। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट एंड वी शुड वर्क ऑन दिस इवन फर्दर कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो होए और हमारी इम्पोर्ट बिल्स कम हों और हम इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करें स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो जो जैतून तेल है, आपने उसके फ़वाइद की बात की कि मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए इसमें मतलब शिफा है, तो जो लोग मरीज़ हैं उनको मतलब ये इस्तेमाल करना चाहिए
मतलब सालन में हो या दूसरी मुख्तलिफ चीज़ों में हो इस्तेमाल करना चाहिए? आई थिंक मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप इसको अपने लाइफस्टाइल में डाल देंगे तो वो आप भले आप बीमार हो या ना हो, वो आपको एक आने वाली चीज़ से बचाएगा। तो आई थिंक लाइफस्टाइल में हमें अपनी हेल्दी चीज़ें डालनी चाहिए और ऑलिव एंड ऑलिव ऑयल शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल्स। तो आई थिंक इवेंचुअली इन द फ्यूचर इट विल प्रिवेंट अस फ्रॉम हेल्थ इश्यूज एंड कैंसर इटसेल्फ। ये मेरा जैतून के काश्त के हवाले से ज़मींदारों के लिए आपका पैगाम क्या है? मैं कहूँगी कि इसकी तरफ रुजू हुएं और अभी जो काम कर रहे हैं उसको और इन्हेंस करने की कोशिश करें। और ज़ाहिर सी बात है, पाक ऑलिव प्रोजेक्ट है, हमारी खेती टेक्नोलॉजीज़ इटसेल्फ, हम इस चीज़ में काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश यही करेंगे हम जितना एम्पावर कर सकें यहाँ के जैतून के फार्मर्स को। तो आई थिंक ये पाकिस्तान में सिर्फ इंडस्ट्री अब ग्रो ही होएगी। अब इसका आगे इसका सिर्फ यही रिज़ल्ट है कि इट हैज़ टू ग्रो एंड इट हैज़ टू गो इंटरनेशनल विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। What is your name? I'm Dr. Marco Marchetti. I am the international coordinator of the olive culture project of the Italian government, working with the Pakistani government on olive development. What do you say about the National Olive Gala? I think that is a great event. We are working in Khyber Pakhtunkhwa very much, in Baluchistan and in Punjab. Is a great event because we have the consumer here. So the consumer should be educated on the quality of oil. What meaning oil? Oil is the most nutritious element on the food, and the potential is very high over Pakistan. So Pakistan tomorrow can also export. But what is important is that the farmer should improve their techniques for production, their techniques for processing, and for commercialization. So we have been here, I have been here since many years. I have seen a big improvement, and this gala shows that there are many organizations, many private retailers, many, I would say, dealers, processors, that they are very much interested on the development. So this is very much positive, and I'm sure that we can improve overall quality, we can improve the quantity, the production, but olive could represent a big instrument against poverty. He could alleviate poverty, he could develop the economy. He is very good for the environment because we can plant the olive in wasteland, in marginal land. So meaning that olive doesn't replace other important crop like sugar crop. What is the benefits of olive? The benefit of oil is first of all healthy because it's giving all the nutritious value that no other oil can give. It's very good for health, is against the cancer, is against to become old. I am 75 years, so you see that I'm taking olive, so I'm still Good, nice. I'm still quite young. It's good in the diet. It's a big nutritious element, so it should be given to the children from their age, from the beginning. It should be given to the old. It should be in the normal diet. Slowly, Pakistan should replace the palm oil. Palm oil is not good for health. So there are the potential slowly to replace. And of course, for the economic development of the country, today
Pakistan is importing $4 billion of edible oil. Out of this, $10 million are from olive. So we should replace this import with local production. Then you can expand the consumption very much. एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो हम लोग कर रहे हैं मुसलसल, और इसका आगे बहुत स्कोप है। यहाँ पे आप लोगों का भी स्टॉल है, इसके फ़वाइद के हवाले से भी लोगों से पूछा होगा, तो जैतून के फ़वाइद क्या हैं? जैतून के बहुत सारे फ़वाइद हैं, जैसे शुगर लेवल, हार्ट डिसीज़ एंड सो ऑन, मल्टीपल टाइम। इसमें कुरान में इतना इसका जिक्र है, तो जिस चीज़ के बारे में अल्लाह ने जिक्र किया, उसकी कसम खाई है, तो उसके बेनिफिट्स आप गिन ही नहीं सकते। एक तो इसकी काश्त की वजह से फिर यहाँ पे जो मार्केट में ऑयल का 1 लीटर है वो 4000 तक है, तो ज़मींदारों को जैतून के काश्त के हवाले से आप पैगाम क्या देना चाहेंगी? ज़मींदारों को मैं ये कहना चाहूँगी कि इसको मज़ीद प्रमोट करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इन केस हम आगे जाके इसको एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी आ सकते हैं, अगर इसको हम और ज़्यादा प्रोडक्शन इसकी बढ़ाते हैं। एक तो ये हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है, और अगर हम इसे आगे लेके जाते हैं तो हमारी एक्सपोर्ट भी इससे बढ़ सकती है। मईशत में भी अच्छा किरदार अदा कर सकते अच्छा किरदार अदा करेगा, इसमें कोई शक नहीं कि मईशत में बहुत अच्छा किरदार है इसका। कौमी जैतून गाले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगी? कौमी जैतून गाला जो इनेकाद किया गया है, एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सारे पार्टनर्स का और सारे ऑर्गेनाइज़र्स का, जिन्होंने ये गाला जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाया है। बहुत से लोगों ने आके यहाँ पे ऑलिव के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल की है, तो और इस्लामाबाद की ऑडियंस बहुत रिस्पॉन्सिव रही थी, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सबका जो सारे स्टॉल्स पर आए और ऑलिव के बारे में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और नॉलेज हासिल की। जैतून के फ़वाइद क्या है? जैतून के हमारे पास बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर मैं ह्यूमन लेवल पे बात करूं तो आपके जितने भी हार्ट रेट प्रॉब्लम्स होती हैं वो इससे सॉल्व होती हैं। एग्रीकल्चर की हार्वेस्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ होती है अगर आप ऑलिव की प्रोडक्शन जो है उसको बूस्ट अप करें। इसके अलावा ब्लड प्रेशर जैसी मरीज़ हो गए, बीमारियाँ हो गई, ऑलिव का जैतून की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में होती ही इसीलिए कि इसकी इकनॉमी सबसे ज़्यादा बूस्ट की जाए। सो ये सारा मेरे मेजर फ़वाइद हैं जो जैतून हमें प्रोवाइड करता है। जैतून के काश्त के हवाले से ज़मींदारों के लिए आपका पैगाम क्या है? ज़मींदारों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑलिव की काश्तकारी में अपना किरदार जो है वो अदा करें, और सारी ऐसी ज़मीन जो समझते हैं कि कल्टीवेट हो सकती है उन सारी ज़मीनों पे ऑलिव की प्रोडक्शन जो है वो हासिल करें, और उन सारी कंपनीज से कंसल्टिंग भी ले सकते हैं वो सारे लोग जो ऑलिव की प्रोडक्शन को जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। जैतून गाले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, ये हमारा जो इस दफ़ा थीम है, ये हम हर साल ही तकरीबन ये जो फेस्टिवल है या गाला है उसको वो करते हैं सेलिब्रेट। बेसिक एम इसका ये होता है कि यहाँ पे आपस में इंटरेक्शन हो सके, प्रोड्यूसर का, ट्रेडर्स का, बिज़नेस ओनर्स का। अभी ये जो हम कल से यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मशीनरी इक्विपमेंट के लोग भी मौजूद हैं जो कि लोगों ने आपस में उनके माहदे किए हैं, सौदे किए हैं, और इसी तरह ही जो प्रोड्यूसर हैं उनका ऑयल के यहीं पे ही नेक्स्ट जो सीज़न है वहीं पे ही उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाते हैं। फिर जो मुख्तलिफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं उनके भी ये इसी तरह ही यहाँ पे ही आपस में बिज़नेस मीटिंग होती है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे जो अवेयरनेस है आम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल क्या है, लाइट ऑयल क्या है, पोमेस ऑयल क्या है, क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। जिस तरह आपने आज देखा होगा यहाँ पे हमने ऑलिव टेस्टिंग जो कंपटीशन है, मुख्तलिफ जो प्रोड्यूसर्स के ऑयल हैं या ट्रेडर्स के ऑयल हैं उनको एवेल्यूएट किया है। सेंसरी एवेल्यूएशन इसे कहते हैं। केमिकल टेस्टिंग के अलावा सेंसरी एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रू लेबलिंग नहीं होती, बहुत मुश्किल होता है। तो आप किस तरह जज कर सकते हैं आप, क्योंकि कीमत में बड़े प्रेशियस ये ऑयल है, तो इसको किस तरीके से। तो बेसिकली ये हम एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं अवेयरनेस के लिए, लोगों की इंटरेक्शन के लिए और बिज़नेस इंटरेक्शन के लिए। जब शुरू में हमने आज से 4-5 साल पहले ये गाला शुरू किया था तो उस वक्त 8-10 प्लेयर होते थे, मार्केट प्लेयर या वैल्यू चेन के प्लेयर। तो अब माशाल्लाह इस दफ़ा हमारे पास 55 से प्लस जो मुख्तलिफ तरफ जो रुझान है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। जी, ये बड़ा इनकरेजिंग है कि आस्ता आस्ता जूँ प्लांटेशन बढ़ रही है, जूँ प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसकी वैल्यू चेन डेवलप हो रही है, और अभी बहुत सारे आगे काम करने की ज़रूरत है। क्वालिटी के एस्पेक्ट्स हैं, इसके न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनको डेवलप करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ डाइज़ हैं, मुख्तलिफ इसका जो पोमिस जो केक बचता है उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो उनको भी वैल्यू ऐड करने की, और लोग आ रहे हैं इस तरह बड़ी तेज़ी से। अब बिग प्लेयर्स जो हैं, नेशनल फूड है, बाकी लोग भी हैं, वो भी आना चाह रहे हैं इसमें। शहरी भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हर स्टॉल पे वो जाते हैं, एक एक चीज़ का पूछते हैं।
तो जैतून के फ़वाइद क्या है? जैतून देखें, एक अल्लाह मियाँ ने एक ऐसी चीज़ में है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके पत्ते से लेके इसके फ्रूट में इसके जो ऑयल है, एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनोल्स और मतलब बेशुमार फ़ायदे। अल्लाह मियाँ ने ये ऐसा एक छोटा फ्रूट है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। तो इसके जो शुगर कंट्रोल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड पे मैं नाम नहीं ले सकता, बेशुमार फ़ायदे हैं। कमी जैतून गाले पर इनकाद बंद स्तासु नज़र से दे सर دا اوله سٹارټ په 2013 کې ما سٹارټ واخسي زیتون غا نو ما پلانټیشن وکړی هغه ټیم دون ویلیو نه ولا او دا ټیم ماشاءالله په 2017 ما پروډکشن شروع دی زما تعلق له بلوچستان سره دی ډیسټریکټ لورلای کلی سرکی جنگل او ډیر شایسته پروډکشن دی دغه مارکیټ دا ټیم زله اولیو کلچر سرکار کوم او دې ته تیل کوم ټیسټونه وکړل ډیر بهترین کوالټي دا په ډیر بهترین انداز باندې زموږ پروډکشن روان دی نو امید دي ان شاء الله فلکونو پلانټیشن سوی دي ذمہداران دي تیار دي چې څوکه به د زموږ د ډیر آمدن ذریعہ د ماحول کې ډیر کار کوي سات زموږ د ایندھن ذریعہ به مو ګرځي د کوم را مټیریل چې دي نو خلک ډیر خوشاله دي ډیر ښه امکان روان دی له صوبه بلوچستان. د زیتون فواید څه دي؟ د زیتون ډېر فواید دي. یو فواید خو دا دی چې کله زموږ نور فصلات بارانونه سي نو هغه بارانونه چونکې نقصان ورسي بلکې په دې کې د باران فایده ورکوي نقصان نه ورکوي. او بل فایده یې دا ده چې نن د هارویسټ کوې یو لس شپې که لیټ سي مسله نه ده چې هارویسټ کوي بیا د دغه په سورج سم وکړي تقریبا 18 یا 24 میاشتې دغه لایف دی نو څه کس وکړي مارکیټینګ کوه کله کله زموږ دا پورټمنډو بند شي یا نورو مسلې وشي غر بند شي نو هغه دپاره ګمرګر سیزن تباه شي د دغه دا فوایدې دي او رسټینګ هم ښه دی هغه ټینګ کې د مزرانو په د سیزن نه وي نو هر لحاظه ډېر سخت فایدهمند دی امکان لحاظه چې هغه بیا کټایي د موږ کټینګ هم لګوو او مال مویشي دپاره او دا کچره یې بیا د اور په طور استعمالوو نو له هر لحاظه دا ډېر بهترینه د اوبو په حواله باندې اوبه کمې غواړي ډېر بهترین ده په دې کې زموږ د وفاق زموږ د صوبو افسران د جلو د ډسټرکټ ډېر بهترینه کردار دی نو اوس زمیندار دا دی ته راوي چې زمیندار په خپله لګوي. زیتون د کښت په حواله سره زمیندارانو ته پیغام څه لرئ؟ بس پیغام دا لرم چې دا د ولګوي دا وخت نه ضایع کوي چې د دې فایده ډېره ده امکان یې ډېر دی اوبه کمې غواړي خواري یې کمه ده مشقت یې کم دی نو زما هر زمیندار ته دا خواهش دی چې کم سے کم نیم باغ یا نیم مځکه د زیتون ولګوي انشاءالله امکان یې مستقبل یې ډېر روشن ښکاره کېږي. زموږ نظر جی دا دی چې دا یو ډېر ښه اقدام دی یو ډېر ښه کار وشو موږ ته پکې د مارکیټ لپاره د زمیندارو لپاره ډېر خلک موږ سره ملو شو موږ ته ډېر معلومات شو د زیتونو متعلق او بل چې کوم دی د زیتونو څوک کاروبار کی هغه خلک موږ سره ملو شو نو د دې جی موږ ته زمیندارو ته ډېره زیاته پیدا وشوه. خبره وکړه چې موږ ته ایوارډ هم ملاو شو نو د ایوارډ سره سره د زیتون فواید څه دي؟ د زیتون جی فواید دا دي چې زما په خیال هر سړي له دا پکار دي چې هغه د زیتون چې کم دی نو دا په خپل ژوند کې خوراک دپاره استعمال کی او دا خوري نو دې سره به انشاءالله صحت هم ټیکي د بلډ پریشر د شوګر د هارټ د ډېرو بیمارو علاج هم دی او بل په قرآن کې هم ذکر دی نو ډېر ښه څیز دی د صحت لپاره پکار دا دي چې خلک یې استعمالي. بل دویمه خبره جي تاسو دا کوېسچن وکړو خلک وي چې یاره دا ګران دي نو ګران خو جي نه دي تاسو چې یو بوتل والی هغه بلا موده کېږي دا تاسو کچه خورئ په کچه فام کې چې خورئ که نه جي نو دا به استعمال بس سار پاس یو 2 چمچه وخوره په سلادو د پاسه واچوه نو د دې ایکسټرا ورجن استعمال هم دقه دی او جي او خلکو ته په داسې طریقه کار باندې استعمالول پکار دي. د زیتون د کښت په حواله سره زمیندارانو ته پیغام څه لرئ چې ستاسو هم یو فارم دی نو پیغام څه دی؟ زما جی د زمیندارانو وروڼو ته دا پیغام دی چې دوی دې دا بوټي وکري دا بوټي که دوی وکرو او دا پیداوار ته راشي یو زموږ د ملک لپاره ډېر ښه دی
زمونږ د ملک چې کوم دی نو ډېره اکانومي ته به زمونږ ډېر دغه میلو شي سپورट میلو شي सब कौमी जैतून गाले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, इस तरह के इनिशिएटिव तो होने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस बने। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि 56,000 एकड़ पे जो है ना इस टाइम पाकिस्तान में जो है ना ओलिव ऑयल के जो पौधा है वो ग्रो कर रहा है, और अगर देखा जाए तो 56 लाख के करीब जो आप लोगों के पौधे हैं इस टाइम ऑल ओवर इन पाकिस्तान जो है वो इस टाइम जो है ना उनसे लोग जो है ना जैतून का तेल हासिल कर रहे हैं। इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे मैं स्टॉल्स में देख रहा था काफ़ी डिफरेंट एरिया से, बलूचिस्तान से, और स्पेशली यहाँ पे मैं जिक्र करूँगा वज़ीरिस्तान से भी ओलिव ऑयल का जो स्टॉल है वो लगा हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे जैतून के जो जंगली जैतून है उसका भी, और जो फार्मी वहाँ पर लोगों ने ख़ुद ग्रो किया हुआ है वो भी लगा हुआ था। तो इस तरह की चीज़ें अच्छी होती हैं, अवेयरनेस लोगों में आती है। जो लोग थे जिनको इसके बारे में कुछ इल्म भी नहीं था तो उसके बारे में लोगों को इल्म होता जा रहा है, तो वो मज़ीद इसमें जो है ना लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, और इससे काफ़ी सारी चीज़ें जो है लोग इससे जो है ना प्रॉफिट भी लेंगे। प्रॉफिट इसका हद से ज़्यादा है पर लीटर, मतलब यहाँ पे लोग 4,000 का बेच रहे हैं, तो फ़वाइद के हवाले से क्या कहेंगे? जैतून के फ़वाइद क्या है? जैसे कि आपको और हमको पता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जिस तरह कुरान में उसका जिक्र है कि जैतून जो है वो हर बीमारी के लिए जो है ना उसको यूज़ किया जाता है, तो ज़ाहिर बात है खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, काफ़ी सारे फ़वायद हैं जिनको अनगिनत है। लेकिन चूँकि इससे पहले इसको एक बहुत बड़ा महंगा समझा जाता था, उसकी हमारे पाकिस्तान में उसका प्रॉपर कोई इस तरह की ग्रोइंग नहीं थी, तो जिस तरह अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोग उसमें जो है दिलचस्पी ले रहे हैं। और सबसे जो बड़ी बात है ये कि इसके लिए जो है ना पानी के हवाले से है ना, जिस एरियाज़ में पानी कम है ये वहाँ पर उसकी जो है अफजाइश जो है वो बड़ी अच्छे तरीके से हो रही है, तो अब लोग उस तरीके से जो है ना लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इस तरह के कैंपेन जो है ना कैपिटल के बजाय उन एरियाज़ में किए जाए जिन लोगों में ये बोया जाता है, ताकि उन लोगों को पता चले इसके फ़वायद और लगाने के तरीके। जिस तरह भी हमने यहाँ पे मशीन्स देखी हैं जो डिजिटल छोटी छोटी मशीनें हैं, अगर ये वहाँ पे लोग करें तो उससे लोग जो लोकल जो किसान है या जो वहाँ इसको बोया जाता है तो वो लोग इससे काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। मईशत में भी बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं ये लोग, जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, जितने भी स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ मतलब इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो जैतून के हवाले से ज़मींदारों के लिए आपका पैगाम क्या है? ज़ाहिर बात जैतून के हवाले से जिस तरह 2-3 साल पहले अगर आप इसकी जो नंबर्स ले लें तो वो इस टाइम डबल हुआ पड़ा है, तो किसान लोगों को और लोगों को ये चाहिए कि जिस एरियाज़ में पानी की डिमांड कम है या पानी वहाँ पे कम है तो उस एरियाज़ में इसको लगाया जाए, और उसकी जो है ना आपको बड़े कम ही रिसोर्सेज में जो है ना आप उससे बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और मेरी गवर्नमेंट से भी यही अपील होगी कि इस तरह के जो आप सेमिनार्स करते हैं, स्टॉल अरेंज करते हैं, वो उन एरिया में बैकवर्ड एरियाज़ में जहाँ पे लोगों को इसकी तरफ माइल किया जाए, ताकि लोग इसमें मज़ीद जो है ना प्लांटेशन करें और इससे जो है ना हमारी मईशत में जो है ना एक बहुत बड़ा किरदार हम अदा कर सकते हैं। कुम दे कामी जैतून गाले इनेकाद शवे दे पदे बांधे स्तासु नज़र सदे زه وایم چې یاره داسې خو موږ بیا چېرته نه ولیدلی، اول ځل مو دا ولیده. زه یم چې دا بار بار په ټول پاکستان کې کول پکار دي، خاص کر په داسې علاقې کې چې کوم لکه ټرایبل ایریاز دي، ګلګت شو، په دې وزیرستان د علاقې کې، په دې کې دا شی تقریبا اوس د 3 څو کاله کېږي چې دا شی شروع شوی دی. نو زه یم چې داسې قسمه میلې فیسټیول هلته هم کول پکار دي چې هغه خلکو کې لږ اویرنس راشي چې دا شی لږ نور هم زیات پروموټ کړي. अवेयरनेस हम ज़रूरत है खुद दिन अलावा तासो हम मुख्तलिफ स्टॉलों मतलब गिरजदली बाए और द जैतून द तेल फ़वाइद से दी زه دا یم چې لکه ایز پاکستاني بیا موږ قبایل موږ ته د دې دومره فواید معلومات نه وي، خو چې دلته کوم فارنر وګورې کوم انګریزان له د نورو ملکونو نه راغلي دي، زه دا یم چې د زیتونو ډېر زیات فواید دي. موږ چې زیتونو زیات تر د ملک باندې چې کوم موږ ته معلومات دي ډېر زیات موږ بهر نه امپورټ کوو، ولې چې زموږ دلته کې خپل پروډکشن ډېر کم و. نو دا په کار د زیتون په هر څه کې استعمالیږي، په فوډ کې استعمالیږي، مطلب په نورو بیماریانو په میډیسن په هر څه کې د دې استعمال، نو زه د دې فواید ډېر زیات دي. زیتون په معیشت کې هم یو لوی کردار دی. دلته چې کوم تاسو به کتلی چې مطلب 1 لیټر په 4000 روپۍ دی، نو په معیشت کې هم یو ښه کردار ادا کولی شي. زه دا وایم چې زموږ په وزیرستان کې تاسو ته معلومات دا لکه وانا ویلفر چې کوم دا سټال لګولی دی، زموږ په علاقه کې دا شی بیخي نه و، لکه نور باغونه و سیب والا شو د نور هر څه، خو زیتون دا څو کاله چې کوم زیتون خلکو باغونه لګول دي چې کوم مونږ د سیبانو په باغ باندې مطلب 15 لکه کو، د زیتون په ول باندې 10 لکه روپۍ کېږي، نو هغه خلک لږ اویرنس راغی چې یاره دا شی لږ زیات لګول پکار دي، ولې چې په دې باندې اوبه خرچه نه کېږي، نور میډیسن سپری مرې د دې ضرورت نه وي. نو زه وایم چې په دې کې ډېر زیات رول د معیشت دغه دی چې هغه خلکو ته دا شی لږ زیات په هغه کې شعور راشي چې دا شی ډېر زیات ولګوي، نو هغه خلکو به معیشت الریډي ټیک شي ورسره.
زیتون د کاشت په حواله سره زمیندارانو ته پیغام څه لري؟ زه دا یم چې حکومت ته پکار دی چې د زیتون چې کوم بوټي دي دا ورته پرووایډ کړي، په دې باره کې داسې فیسټیوال هم وشي، په خلکو کې لږ شعور هم راولي. نو هغه خلکو ته زه دا وایم چې حکومت ته پکار ده چې په دې شي کې زیات دلچسپي واخلي، ولې چې موږ ډېر زیات د بهر نه امپورټ کوو چې دلته پروډکشن پیدا شي، موږ به نور ملکونو ته ایکسپورټ کوو. نو دا خو زه وایم چې ډېره ښه خبره ده چې حکومت دا شی زیات خلکو ته زمیندارانو ته مطلب فیسلټیز ورکړي دې باره کې. قومی زیتون गाले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगी? बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने सारे स्टॉल्स यहाँ पे देखे हैं, काफ़ी स्टॉल्स में एक तो नेचुरल ऑलिव्स हैं, कुछ में पिकल्ड ऑलिव्स हैं, इसके अलावा हमारे पास वो उन्होंने सीड्स वगैरह रखे हुए हैं, इसके साथ ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा प्योर जो एक्चुअल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। रोज़मेरी के मैंने बहुत ज़्यादा पौधे पहली दफ़ा देखे हैं क्योंकि हम ऑयल इस्तेमाल करते थे बालों के लिए, स्किन के लिए, लेकिन पहली दफ़ा बड़ा अच्छा है, मज़ा आ रहा है। और लोग कहते हैं कि खाने में भी इसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मैं तो खुद हमारे घर में होता ही है इस्तेमाल है, मैं डॉक्टर हूँ तो हम तो क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की भी कमी होती है इसमें और बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें नहीं आती हैं आपके जिस्म में, हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट करता है, तो वो सारी चीज़ों। जैतून के फ़वाइद के हवाले से क्या कहेंगी? फ़वाइद क्या है जैतून के? जैतून मेरा ख्याल है हर ऑर्गन के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली स्किन और बालों के लिए तो हम कब से लगाते आ रहे हैं, हम देसी लोग हैं, हम कब से लगाते आ रहे हैं। इसके अलावा अल्जाइमर्स से एक दिमाग के लिए बड़ा अच्छा होता है, जिगर के लिए बहुत अच्छा होता है, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है। और अक्सर मैंने देखा है कुछ लोग जैसे फालिज हो जाता है तो बेड रिडन होते हैं, उनकी मालिश के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा हर जिस्म के ऑर्गन के लिए ही फ़वाइद हैं। सेहत के फ़वाइद के साथ साथ मईशत में भी जैतून का बड़ा रोल है, किरदार है। बिल्कुल, यहाँ पे आके मुझे और रियलाइज़ हो रहा है कि पाकिस्तान में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ऑलिव का रोल इसकी इकॉनमी में। तो मुख्तलिफ स्टॉल्स का विज़िट करने के बाद जैतून के हवाले से काश्तकारों के लिए पैगाम क्या है? मेरा ये पैगाम है कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मैं कहती हूँ बहुत मेहनत का काम है और बहुत लगन से आप लोग पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बहुत हेल्प कर रहे हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें लेके आ रहे हैं, तो कीप इट अप, बहुत अच्छी बात है। इधर आके बहुत खुशी हुई है देख के। डॉक्टर साहब चुकुम द कमी जैतून गाले इनेकाद पदे बंद स्तासो नज़र सदे जी زمونږ دا زیتون د انعکاس چې ډېر ښه دی ځکه چې تاسو ته پته پاکستان ته زیاتر امپورټ کیږي که نه زیتون مونږ سعودي نه راځي نور دا چې کوم عرب ممالک دي هغې نه مونږ راغواړو نو چې یو پروډکټ زمونږ خپل شي هسې تاسو ته پته زمونږ چې امپورټس وغیره دي ډېر لکه کم دي نو چې خپل پروډکټ دي زمونږ څومره ښه هغومره به زمونږ امپورټ ایکسپورټ لیول کیږي نو هغې حساب سره دا ډېر ښه انیشیټیو دی چې زمونږ خپل پروډکټس وغیره دغه کوو دلته د ټول ملک نه خلک راغلي دي مختلف سټالونه هم دوی لګولي دي چې کوم د دوی خپل پراډکټس دي چې کوم دوی خپل تیار کړي دي هغه هم د دوی په سټالونو کې موجود دي نو د زیتون فواید څه دي جی زیتون ډېر زیات فواید دي صحت دپاره ښه دی د زړه مریضان دپاره ټیک دی طاقت شته پکې که تاسو وګورئ زمونږ که سعودي کسان دي اوس لکه که هغوی پیسې وغیره هغوی ته ډېرې میلاو شي لکه تیلو کې تاسو وګورئ زمونږ عرب ممالک ډېر مالداره شوي دي خو همدغه د زیتون او لکه د کم چې قدرتي خوراکونه هغوی د لاسه هغوی صحتونه اوس هم ډېر مضبوط دي او که زمونږ وګورئ پاکستاني عوام دغه هم دی محنتي هم دی خو زمونږ خوراکونه وغیره دومره خراب شوي دي چې هغوی د لاسه زمونږ صحتونه ډېر خراب شوي ډایبټیز کې مونږ وګوره دومره لکه چې کم شي کې مونږ ټاپ نه کول غواړو مونږ چې څومره کم وي هغه عمره زیات دی نو د زیتون د کاشت په حواله سره زمیندارانو ته پیغام څه لري جی زه خو وایم چې دا ډېر ښه شی دی تاسو خپل لکه زمونږ زیاتر ځمکې چې دي هسې فضول پرتې دي لکه سم پکې نشته نو تاسو په کار څه نه څه زیتوني نور ښه قدرتي چې کم څومره ښه اګریکلچر پروډکټس دي تاسو پکې دغه کې اګاو کې تاسو لکه پیسې زیتون منافع هم ښه ده یو لیټر مطلب چې کوم دلته موږ مختلف سټالونو باندې چک کړل 4000 روپۍ یو لیټر دی نو مطلب لکه خلک وایي چې انکم یې هم زیات راځي او منافع یې هم زیاته ده بس مسله صرف زمونږ دا دی حکومت طرف نه ده چې مونږ ته څومره ښه دغه راکړي مشینان وغیره راکړي ځکه چې ته دې دغه کېږي دې نه تیل وځي زیتون د بوټې صفا کېږي هر څه نو چې مونږ ته پکار دی چې لکه هغوی کاشکارانو سره دغه وکړي مدد وکړي مشینري ورله ښه ورکوي مدد یې کوي پوهیږي یې ښه ځکه چې تاسو ته بس زموږ لیټریسي لیول ډېر کم دی نو چې څومره هغه ښه کېږي نو هغه ښه خبره ده چې څومره حکومت طرف نه زموږ ته ښه لایسنس میلاویږي هغومره ښه خبره ده आपका नाम आमिर भट्ट मेरा नाम है आमिर साहब कौमी जैतून गाले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे देखें ये बहुत अच्छा इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है
क्योंकि आपको पता होगा कि जैतून जो है ना वो आयल है जिसमें कोलेस्ट्रोल नहीं होता। आजकल हमारे आवाम में, लोगों में अमूमी तौर पर कोलेस्ट्रोल की बीमारी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा लीवर का है वो मसला होता है। तो ये जो जैतून है इसकी अल्लाह पाक ने कसम भी खाई है, इसलिए ये ऐसा कीमती और इनाम है जो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को के लिए रखा है। इसमें बहुत सी खसूसियात हैं। ये कोलेस्ट्रोल को इसमें बिल्कुल नहीं होता और इसके अलावा आपके मोटापे को कम करता है। आपकी सेहत का बहुत अच्छा ये जुज़्व है अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में इसके प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए हैं और बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो अंडर कल्टीवेशन है जिसमें जैतून लगाया गया है। और अगर हम और इसके अलावा हमारा जो है ना लाखों करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला जो बाहर जाता है हम इसकी इंपोर्ट पे खर्च करते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो अब गवर्नमेंट ने शुरू किया हुआ है और इस पर जब ये आम आदमी तक इसके समरात पहुँचेंगे और आम पाकिस्तान का लोकल जो आयल है वो ज़्यादा जो है वो ताकत वाला है और ज़्यादा प्योर है जैतून। तो इस हवाले से ये है कि पाकिस्तान के हम सब लोगों को चाहिए कि अपने खानों में अंदर और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जैतून का इस्तेमाल को बढ़ाएं। इसकी बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। जैतून का अचार बनता है, जैतून जो है वो आपको इसका जो है कावा भी तैयार होता है। इसके अलावा इससे शहद भी जैतून के पौधे से बनता है। और तो मेरा ख्याल है कि ये इतना अच्छा इनकाद और जितने लोगों की वसी तादाद और बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस मेले में शिरकत कर रही है, इससे ये लग रहा है कि लोगों की दिलचस्पी अब इसमें है और लोगों को एहसास हो रहा है कि जैतून जो है वो हमारी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे मुल्क की इकानमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो उसके अंदर जो है इसका जैतून का ऑयल इतना ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ख़ुद कि उनका लाखों रुपये, लाखों डॉलर जो और करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला जो है वो बचता है। यहाँ पे मुख्तलिफ जैतून के स्टॉल देखकर कैसा लगा और दूसरा इसके फ़वाइद के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए मैंने काफ़ी सारे स्टॉल विज़िट किए हैं। यहाँ पर पौधे भी जैतून के फ्राहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा जैतून का शहद है, जैतून का कावा है, जैतून के मतलब एग्जीबिशन में जो है ना उससे मुतल्लिक़ा सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हैं और जितने यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं तो यकीनन वो बहुत अच्छा है। और जैसा आपने कहा कि इसके हमारे जो असरात हैं वो ये हैं कि हमारा जिगर की सफाई करता है, हमारा कोलेस्ट्रोल जिस्म के अंदर से कम करता है, शुगर के मरीज़ों के लिए ये बहुत अच्छा है, वज़न कम करता है। तो मेरा ख्याल है कि हेल्थ के लिए भी इसकी बड़ी इम्पॉर्टेंट है और यकीनी तौर पर जो जैतून है उससे एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए जैतून का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जैतून के काश्त के हवाले से जो ज़मींदारान हैं उसके लिए आपका पैगाम क्या है? काश्तकारों को चाहिए कि वो अपनी उन ज़मीनों पर जहाँ पर आप समझते हैं कि कोई और आप इसको बाग की शक्ल में लगाया जाता है तो बाग की शक्ल में जब लगाएंगे उसके अंदर मल्टी क्रॉपिंग भी होगी तो वो अगर अपनी आमदन को बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब उनकी ज़मीन से ज़्यादा प्रॉफिट उनको हासिल हो तो वो जैतून काश्त करें। और जैतून के काश्त के सेंटर्स भी जो है ना वो PARC में, चकवाल में, नौशहरा में मुख्तलिफ़ जगह पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों ने लगाए हुए हैं। वहाँ से पौधे मिलते हैं और उन पौधों के उसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंस भी वो देते हैं। वो काश्तकारों को बताते हैं कि पौधा कैसे लगाना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसका फ्रूट कब आएगा, उसको फ्रूट को किस कंडीशन में होता है आपने उसको उतारना है, कब जो है उसमें तेल का जो ज़ख़ीरा है वो ज़्यादा होता है। तो ये महकमा ज़राअत बड़ी अच्छी कोशिश कर रहा है। कौमी जैतून गाले में जिस तरह यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आने वाले सालों में जैतून पाकिस्तान मतलब बाकी ममालिक को एक्सपोर्ट करेगा? देखें पिछले चंद सालों से जब से इसकी काश्त और कैंपेन शुरू हुई है तो यकीनी तौर पर इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट का प्रोसेस यहाँ शुरू हो गया है। लोग जैतून का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं लेकिन अभी इसको कुछ टाइम लगेगा। ये नहीं कि मैं कहूँ कि 2-4 साल में हमारा इतना एरिया अंडर कल्टीवेशन आ जाएगा कि जैतून से हम इतना प्रोड्यूस करने लग जाएंगे कि वो हमारी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर सकेगा। अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसमें कि जब पहले तो हमें अपनी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करना है, उसके बाद हम एक्सपोर्ट का सोच सकते हैं। लेकिन अभी हम पाकिस्तान का अंडर कल्टीवेशन एरिया इतना नहीं है जैतून के लिए जिससे हमारी मुल्क की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके। पहले हमें मुल्क की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए इस कैंपेन को जो लॉन्च की गई है इस पर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करना चाहिए ताकि हमारा जो ख़ाम तेल जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं उस पर जो ज़र मुबादला खर्च होता है उसको कम करें। तो जब हमारा ये लोकल हमारा इस्तेमाल जो है वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट
प्रमोट करेंगे तो उससे भी लाख करोड़ों डॉलर ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर आएगा। और अगर हम अपनी लोकल ज़रूरियात को भी पूरा कर लेंगे तो हमारे वो करोड़ों डॉलर जो दूसरा ऑयल पाकिस्तान में इंपोर्ट करने पर खर्च होता है वो भी बचेगा। कमर साहब क्या कहेंगे कौमी जैतून गाले के इनेकाद के हवाले से? जी हाँ, ये बड़ी अच्छी एक एफर्ट बारी ने की है माशाल्लाह। ये पहले चकवाल में करते थे, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और दिस टाइम दे हैव ब्रॉट इट हेयर। और ये बड़ा अच्छा एक जो स्टेप फॉरवर्ड है टुवर्ड्स इंडिजनाइजेशन, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है एफई फॉरेन एक्सचेंज स्टार्व्ड कंट्री है, और हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल पे जा रहा है। और ये अभी इस वक्त ऑयल एक्सट्रैक्शन हमारे पास बलूचिस्तान में इस वक्त बहुत पोटेंशियल है। साउथ वज़ीरिस्तान वाना में बड़ा हम ग्रो कर रहे हैं वाइल्ड ऑलिव। फिर उसके बाद चकवाल में ये आ रहा है, कोई हमारे पास 18-20 वैरायटीज़ हैं जो कि हम कर रहे हैं, और माशाल्लाह पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और इस वक्त जो आप यूरोप में देख लें, इसकी प्राइसेस ऑलिव ऑयल की दे हैव ऑलमोस्ट बिकम डबल। और ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा पोटेंशियल है इसमें कि अगर गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे। इसमें तो कॉर्पोरेट सेक्टर फार्मिंग भी आ रही है अभी, और हम भी इसको देख रहे हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा एक एवेन्यू हमारे लिए हो सकता है जिस पे हम अपना जो बड़ा प्रेशियस हमारा हार्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज हम सेविंग करें, और ये लोगों में अवेयरनेस दें कि ये पाम ऑयल से और दूसरा पोमेस ऑयल से कैसे बेहतर है ऑलिव ऑयल। इसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कल और आज भी, तो जैतून के फ़वाइद के हवाले से क्या कहेंगे? माशाल्लाह देखें, ये तो कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कि ये हमें पता है कि जन्नत का फल है। ब्रेन के है, इसके जॉइंट्स के पेन्स के लिए है, फिर आपके ट्राइग्लिसराइड्स को के लिए है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को इन्हांस करता है, और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, वेट रिडक्शन में इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं बड़े इफ़ेक्टिव हैं, बड़े इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है। जैतून के काश्त के हवाले से ज़मींदारों के लिए पैगाम क्या है? ज़मींदारों के लिए माशाल्लाह दे आर डूइंग एक्सीलेंट, और उनके लिए बकअप कीप इट अप, और ये करते रहें। माशाल्लाह भी देखें बारिशें भी अच्छी हुई, हमारी फसल यील्ड बड़ी अच्छी पर एकड़ यील्ड बड़ी अच्छी हो रही है, पर ट्री फ्रूट बड़ा अच्छा आ रहा है। तो इसको और मेरा ख्याल है आगे इसको लेके चलना चाहिए। दिन साहबा कौमी जैतून गाले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छा स्टॉल लगाए हुए हैं, और लोगों की जो है ना उनकी पहचान करनी चाहिए। लोगों को पहचान करनी चाहिए, क्योंकि जैतून के तेल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा। इसके फ़वाइद बहुत है। ज़्यादातर एक के साथ मेरी बात हो रही थी, यूरोप से कहीं से आया हुआ था, तो कह रहा था कि मेरी 75 ईयर्स एज है, बहुत मतलब जवान ही लग रहा था। तो वो कह रहा था मैं बाकायदा से इसको मतलब इस्तेमाल करता हूँ। जी मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे जोड़ों में बहुत दर्द होता था, तो मैं वो यूज़ करती हूँ, तो अब मुझे वो दर्द वगैरह कोई नहीं है। और जैतून के काश्त के हवाले से ज़मींदारों के लिए पैगाम क्या है? ये मेरा पैगाम यही है कि मैं बड़ी खुश हुई हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना काश्तकार जो है ना बहुत मेहनत कर रही हैं, और ये पाकिस्तान में जैतून का तेल जो है वो बनता है और पौधे लगते हैं, तो बड़ी खुशी होती है इनको देख के। तो मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं, जैतून के तेल भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैतून की जो लोगों ने अचार बनाए हैं वो भी यहाँ पे लोगों ने रखे हैं, और बाकी भी मुख्तलिफ़ किस्म की जो जैतून से प्रोडक्ट बनती है, जो कावा है वो भी यहाँ पे लोगों ने रखा है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। जैतून के फ़वाइद का पता है? आप भी इस्तेमाल करती है? पराठा वगैरह अम्मी बना के देती है? जी बिल्कुल बना कर देते हैं। जैतून तेल में बनाती है? जी। और मज़ा आता है? जी बहुत मज़ा आता है। कौमी जैतून गाले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगी? बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह के फेस्टिवल्स होने चाहिए। हमारी यंग जनरेशन को पता भी नहीं है कि ऑलिव्स की क्या सिग्निफिकेंस है, और इवन के कुरान मजीद में ऑलिव्स का जिक्र है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आई हूँ, एंड आई गेस इस तरह के फेस्टिवल्स और भी ज़्यादा जो हैं वो होने चाहिए। बिल्कुल
आज ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, उनको अवेयरनेस भी मिल रहा है मुख्तलिफ स्टॉलों पे जो जैतून की मुख्तलिफ मतलब प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे लोगों ने रखे हैं, ख़ासकर जो इसकी आयल है। तो जैतून के फ़वाइद के हवाले से क्या कहेंगी? ऑलिव आई गेस हेल्थ के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है, इसके बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है और रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। जैतून के काश्त के हवाले से ज़मींदारों के लिए पैगाम क्या है? मेरे ख्याल से स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स, जो भी मॉडर्नाइजेशन आ रही है इस चीज़ में, बाहर के आप कंट्रीज़ को अगर देखें तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को फॉलो करें और स्टे अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। आई गेस दैट विल हेल्प अ लॉट। कौमी जैतून गाले के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगी? It's good to have agricultural festivals like this, you know, to tell the people of the importance of this, you know, healthy food, fruits and olives. यहाँ पे आकर कैसा लगा, और दूसरा जैतून के फ़वाइद के हवाले से क्या राय है आपकी? It's quite exciting really, but it's healthy for hair too, you know, and for health. जैतून के फ़वाइद का इससे पहले पता था, और आज जो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इनकी प्रोडक्ट्स हैं, और ख़ासकर तेल के हवाले से यहाँ पे बताते हैं कि सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इससे पहले पता था? No, I'm getting to know it. Yeah, I knew of course, but I'm getting to know more about it. जैतून के काश्त के हवाले से काश्तकारों के लिए आपका पैगाम क्या है? Eat more olives. कतुन को दे कमी जैतून दे गाले पर इनकाद बंदे तासो दे खल को तफसीली खबरें वावरे दे दुयों च दलता मुंगरालो और डेर मुख्तलिफ चुकुम सीजन अभी चुकुम खास कर दे जैतून तेल दी आगा मुख्तलिफ क्वालिटी हम दुयो का तला और दुई दा दे चुकुम फ़वाइद दी आगा हम बयान करें च मुख्तलिफ चुकुम बीमारियाँ दी दा आगे इलाज हम पर जैतून के मौजूद दे और दिन अलावा दुई दा हम चुकुम काश्तकारान दी ज़मींदारान दी आगे ता दा मैसेज हम वर्करू च दा दे ज़्यादा न ज़्यादा काश्त उकड़ेशी दा दे सरा जमुंग दा दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा वसई अल्लाह पमान।